Good morning, students. Welcome back to the next session of your class, subject science, chapter number 1, more about plant. We already discussed that how plant grow, how they increase in size. I told you about germination and the condition required for germination. We also read that plant reproduce through seeds. Mostly plant reproduce through seeds. But today we will discuss the topic that plant reproduce through various body parts such as leaves, stems or roots. First is reproduction from stems. Stems of some plants are taken that have buds on them. कुछ plants के stem जिनमें buds होते हैं वो parent plant से detach कर लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं and then they are grown into the soil. फिर उनको soil में grow कर दिया जाता है and from that bud new plants start growing. फिर उन्हीं birds में से new plants जो हैं वो grow करना start कर देते हैं. This is the process by which plant reproduce from stem. Second is the example of such plants are bougainvillea, hibiscus, sugarcane, onion, potato and ginger. You all know that potato and ginger and onion, though they are roots, but they still grow from, they are called stems. So they are in the category of stem growing plants. Reproduction from leaves. Leaves के थ्रू भी कुछ plants में reproduction देखा जाता है. For example, bryophyllum. Bryophyllum एक leaf होती है जो बहुत thick होती है, fleshy होती है. It is not generally found everywhere, but this leaf is having buds on the edges. उनके किनारे पर बहुत सारे buds होती हैं, leaves की तरह ही buds होती हैं. When they get detached from the parents plant, जब वो parents plant से अलग हो जाती हैं या उन्हें अलग कर लिया जाता है, then new plant start growing from such buds. और इन्हीं buds में से plants जो हैं वो grow करना start हो जाते हैं. Reproduction from roots. कुछ ऐसे plants भी हैं जिनमें reproduction roots के through होता है. Sweet potato and carrot are root. When replanted, they grow into new plant. Sweet potato और carrot इस तरह के plants हैं. जब इनकी roots को दोबारा grow कर लिया जाए, then they again develop into new plants. So, fourth one is reproduction from spores. Some plants do not reproduce from seeds, stem or flower. They are having special structure which help them to reproduce, and these special structures are called spores. These spores are responsible for reproduction in such plants that do not reproduce through seeds, leaves or roots. Example, fungi, mushroom and bread mold. कुछ ऐसे plants होते हैं जिनमें seeds, roots और stems, leaves ये responsible नहीं होती हैं. इनके पास कुछ special structure पाए जाते हैं इनके leaves के under surface पर जिन्हें हम बोलते हैं spores. और examples हैं mushroom, fungi and bread molds. Next topic is crops. What are crops, students? Plants that we cultivate and they help us in providing food and raw material which is needed to produce many other things. These are called crops. When crops are grown in large quantities and they fulfill our need and they are grown for various other purposes also, this process is or this practicing is called agriculture. So students, these are the types of crops. Food crops: maize, rice, pulses, wheat and sugarcane. They provide us food. Fiber crops: cotton, jute, flax and hemp. They are generally helpful in industries or textile industries, you can say, textiles also. Oil producing crops: crops that give us oil, mustard, groundnut, soya bean and sunflower. On the basis of season, crops are grown. They are classified into two categories:
kharif crop and rabi crop. What are kharif crop? Kharif crops are crops that are grown in summer season and they are harvested during winter season generally. Rice, bajra, jowar, jute and pulses. Rather than these, students, you also see few vegetables and fruits that we generally get during summer season and winter season. They are grown and they are on the basis of season. Vegetable and fruit are also categorized. Rabi crops are winter season crops. They are grown in winter season and harvested during generally summer season. Example, wheat and gram. Healthy crops. To grow healthy crops, it is needed that crop should be taken with the proper care. क्रॉप अच्छे से ग्रो हों, अच्छे से फसल उगे, इसके लिए फार्मर्स भी कुछ स्टेप्स लेते हैं जिनसे अच्छी यील्डिंग होती है, अच्छी उपज होती है. टू गेट बेटर यील्ड क्रॉप नीड प्रॉपर केयर. सो स्टूडेंट, हियर वी विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स विच विल शो अस दैट हाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन हेल्दी कंडीशंस. डिफरेंट क्रॉप नीड डिफरेंट सॉयल. अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग सॉयल नीड होती है. सो फार्मर शुड इवेल्युएट. फार्मर को क्रॉप ग्रो करने से पहले सॉयल को इवेल्युएट कर लेना चाहिए, क्रॉप के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना चाहिए दैट वेदर दिस सॉयल इज़ गुड फॉर दैट क्रॉप और नॉट. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर शुड बी एडिड. क्रॉप ग्रो करने से पहले सॉयल में जब सॉयल प्लग करी जाती है एट दैट टाइम मैन्योर ऐड करा जाता है और फर्टिलाइजर्स भी ऐड करे जाते हैं क्रॉप्स की नीड के अकॉर्डिंग एज दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. नाउ गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड. अच्छा पानी की सुविधा भी होनी चाहिए क्रॉप्स के पास. हम लोग अपने आसपास गार्डन और पार्क, इवन हमारे घर में भी जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर केयर करते हैं और अच्छे वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं. तो ऐसे लार्ज फार्म्स में जब फार्मर वर्क कर रहे होते हैं क्रॉप्स के लिए तो उन्हें भी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी की नीड होती है. सीड सोन शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. जिस तरह के बीज बोए जाएँ वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए, तभी क्रॉप की जो यील्डिंग है, उपज है, वो इंक्रीज होगी और अच्छी होगी. लास्ट इज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रेड. क्रॉप ग्रो करने के बाद जब फसल रेडी होने लगती है एट दैट टाइम इंसेक्ट्स और पेस्ट उन पे ब्रीड करने लग जाते हैं, उन पे उनको खाने के मतलब उनसे खाना लेने लग जाते हैं. इनसे बचने के लिए, इनसे अपनी फसल को बचाने के लिए फार्मर्स इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं ताकि क्रॉप्स जो हैं वो अच्छे से प्रॉपर हेल्दी ग्रो हो सकें. स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स. जब क्रॉप ग्रो किए जाते हैं तो क्रॉप्स को एनिमल्स से, डिजीजेस से, इवन इनकी स्टोरेज फैसिलिटीज से भी बहुत ज़्यादा हार्म होता है, नुकसान होता है. क्रॉप गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू बर्ड्स, इंसेक्ट एंड पेस्ट. क्रॉप्स को नुकसान देने वाले बर्ड्स, इंसेक्ट और पेस्ट भी हैं. बैड वेदर कंडीशन भी क्रॉप्स पे इफेक्ट करती है. अगर ज़्यादा बारिश हो जाए या बारिश नहीं हो then also crop get destroyed. Third condition, disease of stems, leaves and root. Plants में diseases develop हो जाती हैं और इनसे भी crops जो है वो destroy हो जाते हैं. Grazing animals भी destruction का reason है. Grain should be stored. इसलिए grains को properly grow करना चाहिए, proper conditions होनी चाहिए और इनको store करने के लिए air tight containers होने चाहिए जिनसे मॉइस्चर इन पर अफेक्ट नहीं करे और ग्रेन्स जितने भी ग्रो करे गए हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हों. फेंसिंग होनी चाहिए फील्ड्स में. फेंसिंग शुड बी देयर टू प्रोवाइड ग्रेजिंग एनिमल फ्रॉम एंटरिंग द फील्ड. फील्ड में एंटर होने से ग्रेजिंग एनिमल्स बचाए जा सकें, रुके रहें वहीं पे ही, फील्ड में एंटर नहीं हो. इसलिए फील्ड के आसपास फेंसिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर. कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जो एग्रीकल्चर में हेल्प करती हैं. फर्स्ट इज़ व्हेन फर्स्ट फील्ड इज़ प्लो. सबसे पहले फील्ड को जो फसल काटी जाती है, हार्वेस्ट करनी जाती है, उसके बाद फील्ड को अच्छे से उसके लम्स, उसके जो सॉयल के जो लम्स हैं उनको हटाने के लिए उसको प्लग किया जाता है और उसकी जो लास्ट जो क्रॉप था उसकी रूट्स भी इस प्रैक्टिस से हट जाती है. इसके लिए मॉडर्न टेक्निक्स में ट्रैक्टर यूज़ करा जाता है. अर्लियर फार्मर यूज कैटल्स. पहले फार्मर्स कैटल यूज़ करते थे एंड नाउ डेज ट्रैक्टर्स आर यूज्ड. मैन्योर इज एडिड टू द सॉयल.
इसके बाद सॉयल को वापस से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने के लिए मैन्योर ऐड करे जाते हैं एंड देन सीड्स आर सोन, और उसके बाद सीड्स सो किए जाते हैं। सीड्स सो होने करने के बाद जब बीज बो दिया जाता है, आफ्टर दैट फील्ड इज प्रोवाइडेड और क्रॉप इज प्रोवाइडेड विद वाटर एंड दैट इज कॉल्ड इरीगेशन। सो प्रोवाइडिंग इरीगेशन टू द क्रॉप, पेस्टिसाइड एंड आर स्प्रेड, पेस्टिसाइड स्प्रे करे जाते हैं, क्रॉप ग्रो हो गया एंड आफ्टर दैट पेस्ट और इंसेक्ट इन पे इजीली बीट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनसे क्रॉप्स को प्रिवेंट करने के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं। लास्ट इज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड देन व्हेन क्रॉप ग्रो इन हेल्दी वे दे आर हार्वेस्टेड, उन्हें काट लिया जाता है एंड दे आर गैदर्ड, और फिर उन्हें इकट्ठा करके दे आर स्टोर्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर, फिर उन्हें एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से स्टोर करके रख लिया जाता है एंड दैट प्रोवाइड अस फूड एंड अदर and provide raw material to get other things to us. So student, this was about chapter number 1. I hope you all understood well. Now just go through the chapter and learn word bites of this chapter.